A very good morning to all my dear students. Today we are just going to do our poem, that is the snake trying. This is a short poem and it has been written by W.E. Ross. So basically, if I will talk about the main theme of this very poem is to save the wild animals. We should not scare of them. We should not have a feeling of fear. Instead of that, we have to respect them, and we have to do one thing, that we have to convey our positive vibes to them. सो यहाँ एक बेसिकली एक चीज़ पर फोकस किया गया है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए ख़तरा तब तक नहीं होती जब तक हम उसके लिए ख़तरा नहीं होते. सो यहाँ स्नेक ट्राइंग की बात की गई है, यानी कि जो सांप है वो कोशिश कर रहा है. इट मीन्स वो कोशिश किस चीज़ की कर रहा है. नाउ जस्ट सी, हम इस पोएम में पढ़ते हुए ये बात जानेंगे. But before all these things, I really want to discuss about the W.E. Ross, who is the well-known poet, and he always used to write about the wildlife, and he is very much concerned about the wildlife and its you can say features, characteristics. As a snake is a snake is a reptile which usually being be considered as a sign of fear and a symbol of frightened, right? So हम उसे डरते हैं और उसे घबराते हैं जब भी हमें कोई स्नेक दिख जाता है. तो हम सब के लिए एक फियरसम वाली यू कैन से फीलिंग आती है. एंड इट आल्सो ए सिंबल ऑफ डेथ फॉर समवन. किसी न किसी के लिए फियर ऑफ डेथ हो जाता है, तो इसलिए सिंबल ऑफ डेथ भी माना गया है. क्योंकि कई बार आपको लगता है कि स्नेक जो है उसकी बॉडी काफ़ी यू कैन से लचीली है, फ्लेक्सिबल है एंड शाइनी है, एंड इट्स अपीयरेंस इज आल्सो सम हाउ ए काइंड गिव यू ए fearsome feeling. So, in conclusion, if I'll say, then most of us think of the snake as fearsome, as a symbol of death. But the snake, sometimes we never used to think that it can itself be a victim. It means ये खुद में भी एक पीड़ित हो सकता है. It means ये क्या पता हमसे बच रहा हो. तो हम इनके अंदर की बातें कभी नहीं सोचते हैं, राइट? कि एक सांप गुजर रहा है तो हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि वो अपने किसी काम से या फिर अपने लिए कहीं जा रहा है. हम जनरली ये सोचते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचाने आया है, राइट? तो हम उसे डर जाते हैं और उसे मारने के लिए दौड़ते हैं. कुछ ऐसा ही इस पोम में दिखाया गया है कि कुछ लोग एक स्नेक को, यानी कि एक सांप को जो वो काफ़ी दुबला पतला सा है, उसको लाठियों से मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो आगे की तरफ भाग रहा है. नाउ हम इसमें कुछ रिलेटेड डिवाइसेस करेंगे और हम इसमें इसकी हिंदी एज वेल एज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन वी विल डू, एंड वी विल आल्सो यू कैन से find out the difficult word meaning which you have to written down in your notebook. So before reading this very poem, I really want to say one thing, that just be humble to the wild animals, especially to the reptiles and all the not even the reptiles but to all the wild animals. Actually, reptiles I am saying here just because our author, you can say poet, the W.E. Ross wants to convey us the message that sometimes the situation may be somehow difficult to understand, that whether the snake is trying to escape or whether the human being is trying to murder or kill that particular snake. Now here the snake is trying, right? What he is trying, let me discuss through the poem. Here the snake trying. The snake trying means जो सांप है वो कोशिश कर रहा है to escape. Escape means होता है to run away, to go away, to hide himself. It means वो भागने की कोशिश कर रहा है. The pursuing stick, यहाँ स्टिक जो है उससे वो भागने की कोशिश कर रहा है जो उसका पीछा कर रही है. अब यहाँ स्टिक तो पीछा नहीं कर सकती है. Now here is the use of personification, my dear students. Poetic device have been used here, the personification, क्योंकि अब पीछा कौन कर सकता है? ह्यूमन बींग्स. एंड यहाँ स्टिक को एक एट्रीब्यूट दे दिया गया है, क्वालिटी दे दी गई है ह्यूमन बींग्स की. वो पीछा कर रही है, यानी कि वो चल के पीछा कर रही है, दौड़ के पीछा कर रही है, वट एवर थिंग इज. बट जो लोग हैं वो पीछा कर रहे हैं, बट यहाँ स्टिक का नाम लिया गया है. दैट्स वाई हियर द personification occurs. So
जो स्नेक है वो ट्राई कर रहा है एस्केप होने की, किससे? जो स्टिक उसका पीछा कर रही है, विद सडन कर्विंग ऑफ द थिन लॉन्ग बॉडी. नाउ द पोएट हिमसेल्फ टेलिंग अस दैट द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्नेक, कि वो बहुत कर्विंग लेके चलता है, जैसे हम घूम के चलता है, यानी कि थोड़ा सा कर्व लेके चलता है अपनी बॉडी को. वो काफ़ी पतला सा है लेकिन काफ़ी लंबी बॉडी है उसकी. तो आपने कभी सांप को रेंगते हुए देखा होगा, तो जब रेंगता है तो उसमें काफ़ी वेव्स वाली कर्व्स बनती हैं, राइट. हाउ ब्यूटीफुल, वो कहते हैं कितना सुंदर है ये. देखिए हम जनरली सांप को देख कर डर जाते हैं, या वो कहते हैं कितना गिलगिला या फिर कितना ज़्यादा यू कैन से अनब्यूटीफुल है, राइट. तो यहाँ पे बोला गया है कि वो कितना सुंदर है एंड ग्रेसफुल है, कितना शानदार है. आर हिज शेप्स जो उसके ऊपर बनी हुई हैं, जो आकार उसके ऊपर बने हुए हैं, जो भी क्यूबिक हो चाहे वो अदर कोई फॉर्म हो, तो उसके अंदर वो जो भी शेप बनी हुई है, जो भी स्ट्रक्चर पैटर्न बना हुआ है, वो बहुत ही सुंदर है. ये कहना है हमारे WWE रोज का. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर वे फ्रॉम द स्ट्रोक. अब यहाँ पर स्ट्रोक एक छोटा सा यू कैन से आप लगा सकते हो, पानी की एक धार सी है जो बह रही है, तो वहाँ से उसके अंदर वो घुस जाता है और उस छोटी सी पानी की धार के अंदर से करता है. और जैसे ही आपने कभी देखा हो तो पानी के अंदर जो सांप चलता है तो अपनी बॉडी मूवमेंट को तेज कर लेता है, और ये वही कहता है कि वो उसमें से भी ग्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है, यानी कि उसमें से भी आसानी से वो भाग रहा है. और लेट हिम गो. अब WWE रोज जो है वो कह रहा है कि उनसे जाने दो. ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर. वो उन रीड्स एक काइंड ऑफ प्लांट होता है बेटा, जो कई बार झड़ता हुआ दिखाई देता है. तो जनरली ये हमें किसी भी यू कैन से नदी के किनारे, पॉन्ड के किनारे, तालाब के किनारे, इन सब के किनारे आपको मिल जाता है. तो जनरली ये एक तरीके का प्लांट होता है. तो ये कहता है कि उसको रीड्स में छुप जाने दो, उसको कोई हर्ट ना हो, इसलिए वो वाटर में से उसे जाने दो, यानी कि हम उसे पकड़कर मार ना दे तब तक हमें दम नहीं आता, राइट. तो हम सोचते हैं कि क्यों ना ये मर ना जाए, तब तक हम इसका पीछा करें. तब हमारे WWE रोज जो है वो ये कहते हैं कि इसको जाने दो, ये कितना सुंदर है. तुम्हें नहीं लगता कि ये तुमसे खुद डरा हुआ है या ये खुद विक्टिम है तुम्हारा? देन स्मॉल एंड ग्रीन इज हार्मलेस. ये हरे रंग का है और ये छोटा सा है, ये काफ़ी हार्मलेस है, ये आपको कोई नुकसान नहीं करता है. इवन टू चिल्ड्रन, बल्कि बच्चों के लिए भी नुकसानदायक नहीं है, इसको जाने दो. लेकिन नहीं, इंसान इतना यू कैन से खुद गर्ज है, सेल्फिश है, दैट ही नेवर यूज टू लेट हिम गो. वो उसे कभी जाने ही नहीं देगा कि वो कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचा दे. भाई वो नुकसान कहाँ से पहुंचाएगा, वो खुद डर रहे हैं आप लोगों से, राइट. Along the sand he lay until observed. वो कहाँ लेटा हुआ था? जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया तब तक वो बड़ी सुनहरी दोपहर में या फिर धूप में वो रेत के ऊपर लेटा हुआ था, जब तक उस पर ऑब्जर्व नहीं किया गया. एंड चेज्ड अवे एंड नाउ ही वैनिश्ड इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स. यहाँ पर यू कैन से वो वहाँ लेटा हुआ था, उसके बाद यानी कि उसकी सुंदरता दिखा रहा है, वो लेटा हुआ भी कितना सुंदर लग रहा है. उसके बाद वो भाग जाता है, एंड जब हमने लास्ट टाइम में ऑब्जर्व किया तो वो हमें रेत में दिखाई दिया था. उसके बाद वो चेज़ हो गया, उसके पास पीछा करने लगे उसका लोग, राइट. एंड नाउ ही वैनिश इन द रिपल्स. पीछा करते करते लोगों की आंखों से वो वैनिश हो गया, वो भी उन रीड्स में, उन्हीं ग्रीन रेपल्स में. जो रीड्स वही प्लांट होते हैं जो वाटर या मार्श प्लांट्स होते हैं, जो थिक स्टेम्स के होते हैं, जो काफ़ी मोटी स्टेम होते हैं, तना काफ़ी मोटा होता है, उसमें वो छिप गया, चला गया, यानी कि वो भाग गया. यहाँ तो चलो ये यहाँ हमारी पोम जो है वो एंड होती है WWE रोज के द्वारा जो कही गई है. तो यहाँ पर एडमायर कर रहा है WWE रोज एक स्नेक को जो ट्राई कर रहा है एस्केप होने की. किससे? पर्सिंग स्टिक से, या पर्सिंग स्टिक से पर्सोनिफिकेशन है. तो वो उसको बहुत सुंदर बताता है, उसके ग्रेसफुल बताता है, वो कितना शानदार है, उसकी शेप कितनी शानदार है, उसकी जो बॉडी मूवमेंट है वो भी कितनी शानदार है. और वो अपने आप को यानी कि हम जीव होकर जीव की हत्या कर रहे हैं. बीइंग ए you can say living being on the earth, we are just doing harm to other living beings, right? So for this WWE Ross has written down this poem so that he can convey the message that we should be humble towards the wild animal, because they have their own life too, and they are not going to harm you unless you will not harm them.
सो वो उसको पानी में जाने की गुजारिश करता है कि वो यहाँ से भाग जाए, उसे भागने दो. Now, after that, all these things, we just find out some of the most important questions here. The first question says, what is the snake trying? Snake trying to escape from. Here, the question number first lies its answer in the line first of the poem, that is, what is the snake trying to escape from? He is trying to escape from the pursuing snake, which are just personified by the human attributes, because the human beings were there. Now let us talk about one more thing, that is it a harmful snake? What does its color, it means इसका कलर क्या था और क्या हार्मफुल था, ये क्वेश्चन अराइज होता है. Then what will be the answer is that it is not a harmful snake. Is the color of this very snake is green. So usually used to say that if a snake used to be live in water or of the green color, then it's not harmful, not even for the children. Here the third question says, the poet finds the snake beautiful. Find the words he uses to convey its beauty. Now here he finds the beautiful. What he says, that he is beautiful and graceful, and he using the word, the curving of the thing, long body, graceful, beautiful, and all these things. So next fourth question is, say, what does the poet wish for the snake? That particular snake will escape from the pursuing snake or the pursuing human beings, right? And he will hide himself in the reeds. Fifth question says, where was the snake before anyone saw it and chased it away? Where does the snake disappear? लास्ट में कहता है कि स्नैक कहाँ लेटा हुआ था, वो सैंड में लेटा हुआ था, वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था वहाँ लेटा हुआ. देन चेज इट अवे, और वहाँ से उसका पीछा किया गया. तो वो कहाँ लेटा हुआ था? देन ही वॉज जस्ट लेइंग ऑन द सैंड. एंड उसके बाद वो कहाँ हो जाता है? डिसअपियर. ही वॉज जस्ट डिसअपियर इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम reeds. Remember this. Now here are some of the questions, you can say, for you, activities for you, the second section of this. So you have to find out all these things and write down in your notebook. Now let us talk about the very you can say enchanting poem just beside this very poem, that is snake trying, green snake. So this is not in our syllabus, but this is whole say very beautiful lines towards the snake. Now let us see. Early morning the day before yesterday. The day before yesterday means परसों. Early morning यानी सुबह, जल्दी सुबह, परसों. Under a slab of stone, एक स्टोन की पत्थर की स्लेब के नीचे, इन एक क्रैक मीन्स एक दरार में, आइज ग्लिटरिंग, बड़ी प्यारी सी आंखें चमक रही थी. फोक टंग लिकिंग एंड फ्लैशिंग, काफ़ी वो चमकदार लग रही थी. और जैसे वो फोक यहाँ होता है कांटा. आपको पता है जिस चीज़ से हम चाउमीन खाते तो उसे फोक बोलते हैं. तो वैसे ही अगर किसी भी चम्मच के, स्पून के दो आपको यू कैन से फेजेस में उसको मिले तो उसे फोक्ड कहते हैं. फोक टंग लिंकिंग एंड फ्लैशिंग, राइट. अ फ्रॉग स्वेलिंग हिज बेली, इट मीन्स उसने अभी क्या खाया होगा, उसके बेली में एक फ्रॉग है, उसने अभी फ्रॉग को स्वेलोड अप किया होगा अपनी बेली के अंदर. ही ले देयर क्वाइटली, और वो वहाँ पर चुपचाप लेटा हुआ है. यानी कि इतना भारी हो जाता है उसका पेट, वो है तो छोटा सा ही, दरार के अंदर आ गया तो ऑब्वियसली छोटा सा ही है. तो उसके अंदर एक फ्रॉग है जो उसकी बेली को स्वेलिंग के, यहाँ स्वेलिंग का मतलब है कि उसका पेट जो है वो भरा हुआ है. अब बेबी स्नैक, वो स्नैक कैसा है? एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है स्नैक का. 2 hands लॉन्ग, 2 हाथ लंबा ही है. एक ग्रीन स्नैक, ये भी एक कैंसर स्नैक है, ग्रीन स्नैक है जो हार्मफुल नहीं है. Poor thing, it's a green snake, still a baby. What harm can do it do? I said. मैंने सोचा या मैंने कहा, वो अपने पिताजी से बात कर रहा है यहाँ पे. तो वो कहता है कि बेचारा ग्रीन यानी कि हरा सांप है,
लेकिन छोटा सा बेबी है तो ये किसको हार्म कर सकता है? माई फादर रिप्लाइड, अ स्नेक एंड मदर, दैट्स वेयर एवरीवन वॉक एंड वी डू नॉट नीड ट्रबल, किल इट, आई कैन नॉट, आई सेड। नाउ फादर कहता है सांप तो सांप ही होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, राइट। और मदर कहती है दैट्स वेयर एवरीवन वॉक, वी डू नॉट नीड ट्रबल, किल इट। ये वो जगह है जहाँ पे सब आते जाते हैं, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे मार देते हैं। मैंने कहा मैं नहीं सकता, मैंने इसे मार सकता। फादर struck him with a piece of firewood and chased him outside and killed him flat. अब मेरे फादर ने क्या किया, एक आग जलाकर एक पीस ऑफ वुड है, मतलब वो उसके अंदर डाल दी, क्रैक के अंदर, और वो बाहर निकाल दिया। और बाहर निकलते ही जैसे वो बाहर निकला, वो मार मार कर उसको फ्लैट बना दिया, यानी कि वो मर गया। ये पोम लिखी है बी आर लक्ष्मण राव ने, जिसको ट्रांसलेट किया गया है ए.के. रामानुजन के द्वारा। सो बेसिकली ये ग्रीन स्नेक एंड द स्नेक ट्राइंग, these two of the poems are basically lies on the same theme that we should humble towards the you can say our wild creatures. So some of the poisonous snakes can be harmful to you. If they are doing harm, then you can kill. But if the snake, like the green snake and the poor baby snakes, were just you can say but they are in our house and home outside, then why should we, if they are not giving us the harm, why should we kill them out? Is there something wrong? So here the basically theme is that हमें किसी भी तरीके से, किसी भी यू कैन से, अगर कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, हार्म नहीं कर रहा, देन यू डोंट हैव नीड टू डू द हार्म टू दैट पर्टिकुलर creature. So this is all about your poem, in which you can say in the first of the poem where the snake is trying, as the snake is trying, right? So the snake trying to escape the pursuing snake with sudden curving of tongue, long body, how beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stalk, or let him go. Now just see here, have you seen any kind of rhyming scheme? The snake trying, stick, thin, beautiful shapes, away, go, water. These are the last words of each line. So there is no rhyme scheme. It has been written in the free words or the blank words, you can say, where there is no rhyme scheme. That is known as rhyme. Free words here say. So here we can say that without any rhyme, it is a very impacted poem and very forcefully give us the message that a human being should not convey all these things to especially to their children, so that in the future they will not harm anyone and they will not harm any of the creatures, especially the snake, which are just moving always around to us. And whether they are reptiles, they are seems to be very smuggy, but they are not appears to be very dangerous, so we should be humble to them, but generally we do not, because some of the examples, as we if I will take about my home, then one day a snake was just trying to enter in my house, and we had just caught him, and he was just frightened out. He just frightened out of us, of the human being, and he was just lay under the grain drum, right? And we could not find even, and he was just give a kind of things. So that particular snake was just trying to escape from us, and we are just trying to catch it down, and we have just given a kind of fort. Fort is a pesticide which we usually use in the field to kill the pesticides. So here we have just put down some of the forts on that, and he was just laying down, and he was not got faint, and we were just thought that he will be got fainted, but he didn't. And after that he has just you can say hide himself in a crack, like which has just already been done in our green snake, right? So उसी तरह से वो दरार में घुसा रहा, and we were just not
you can say it's not possible to us for us that we can and it's a big challenge to you can say to put that particular snake out of that crack. So we just put down some of the fort, and finally we didn't get the success. But in morning we were just left over there, whether he is dying or not. He will escape if he will understood this, वो बच जाएगा. बट इन द मॉर्निंग वी फाइंड दैट कि वो वहाँ से गया ही नहीं. एंड तो हमें एस बीइंग एक घर में वो था, तो इसलिए हमें उसको बाहर निकालना पड़ा. मेरे चाचा जी आए, वन ऑफ माई you can say uncle was there, and he was just put a stick over there, and he just if I will say that the snake was just killed by my uncle, and he was just killed him so flat that he just got down. And after that ऐसा माना जाता that if you will grave that particular thing na, then it will be boon for you. So we have just picked that body of the snake, and we have just buried it into the earth, so that it will be you can say so that it will be demolished and all this. So it is all about the poem kill to killing a. It's all about the poem that is